Jai Hind students, in this video I am going to make you understand about the process of meiosis, the stages of meiosis, and especially focuses on the prophase 1 stage of meiosis. Prophase 1 stage of meiosis. Meiosis takes place in two different stages. टू स्टेज में meiosis complete होता है. It is another difference of meiosis from mitosis. Mitosis completes in one phase, one cycle only. That cycle consists of different stages, but meiosis completes its cycle in two phases. First phase is meiosis 1, second phase is meiosis 2. In the previous video, I have make you understand that meiosis is responsible for genetic variation. So in this video I am going to make you understand that stage which is responsible for bringing the genetic variation. मैं अभी इस वीडियो में उस स्टेज को बताऊंगी जो कि जेनेटिक वेरिएशन लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. That stage, first of all, meiosis is takes place in two steps, two stages, meiosis 1 and meiosis 2. The name of all the sub stages are same as mitosis. The only difference lies in prophase 1. Okay, prophase 1, meiosis 1 is divided into prophase 1, metaphase 1, anaphase 1, telophase 1. Meiosis 2 is divided into prophase 2, metaphase 2, anaphase 2, telophase 2. See, if you have understood the process of mitosis exactly and in a very good way, then there is no problem to understand the meiosis 2 process. Meiosis 2 is just like mitosis, but the complications, the distinct feature of meiosis that it brings genetic variation, वो तो किसी स्टेज में होता होगा. That stage is prophase 1 and it is a little bit complicated stages. हमने माइटोसिस में पढ़ा था कि प्रोफेज 1 में क्या होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपियर हो जाते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल्स क्रोमोजोम में कन्वर्ट हो जाते हैं, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है, सारे ऑल ऑर्गेनल्स भी डिसअपियर हो जाते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म में कोई डिफरेंस नहीं होता. ये प्रोफेज 1 का कैरेक्टर है. तो प्रोफेज 1 में यहाँ भी वो सब होंगे. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हटेगा, न्यूक्लियोलस डिसअपियर होगा, क्रोमेटिन मटेरियल क्रोमोजोम्स में बदल जाएंगे, लेकिन इनके साथ साथ होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोजोम जो हैं, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया होमोलोगस क्या है. होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोजोम आपस में कुछ ऐसी घटना करेंगे, कुछ ऐसी एक्टिविटी होगी दोनों होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोजोम के बीच में, जो कि अपने मटेरियल को एक्सचेंज करके जेनेटिक वेरिएशन लाएंगे. और वो सारा जो स्टेप्स है, जो जेनेटिक वेरिएशन लाने का स्टेप्स है, वो डिवाइड किया गया है. वो होता प्रोफेज 1 में है एंड डिवाइड किया गया है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस के स्टेज में. तो प्रोफेज 1 of meiosis 1 is little bit complicated, that again consists of sub stages lactotin, zygotin, pachytin, diplotin, dikinesis. Overall process is same, that nuclear membrane will disappear, chromosome will be formed, all organelles will disappear. Along with that process, these process will also takes place before completing the prophase 1. prophase 1 को complete होने से पहले ये सभी process भी chromosomes के साथ होगा, and these processes are responsible for genetic variation. Then I am making you understand this process by a chart. So in the previous video I have make you understand that meiosis takes place in diploid organism, means it has all the set of chromosome in duplex form, in double form, means every set of chromosome will be one will be from father and one will be from mother. Homologous chromosome, I have make you understand that if it is the number 1 chromosome of father, then number 1 chromosome from mother will be called as homologous chromosome. These chromosomes will carry all the genes that are similar in nature. ये दोनों क्रोमोसोम जो होंगे वो सिमिलर इन नेचर होंगे. ओके, देन इन प्रोफेज 1 ऑफ लैप्टोटीन स्टेज सबसे पहला इनिशियल स्टेज है, और ऑफ कोर्स क्रोमेटिन मटेरियल विल स्टार्ट कंडेंसिंग इनटू क्रोमोसोम्स.
क्रोमोसोम्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर एक दूसरी घटना जो प्रोफेज 1 के लैप्टोटीन में होती है, हर क्रोमोसोम, हर सेट ऑफ क्रोमोसोम, एवरी क्रोमोसोम विल सर्च इट्स होमोलोगस क्रोमोसोम। हर क्रोमोसोम अपने होमोलोगी पेयरिंग को ढूंढना स्टार्ट कर देगा। ओके और ये ढूंढना स्टार्टिंग, दैट इज सर्चिंग फ्रॉम होमोलोगस क्रोमोसोम, स्टार्ट्स इन द लैप्टोटीन स्टेज। लैप्टोटीन स्टेज में स्टार्ट हो जाएगा। ओके नाउ एक और बातें जो आपको समझनी होगी जो कि मियोसिस में थोड़ा डिफरेंट है, वो ये है, माइटोसिस में हमने पढ़ा था दैट इन द मेटाफेज माइटोसिस क्रोमोसोम अरेंज्ड इन द इक्विलैटरल प्लेट इन एडजेसेंट टाइप, मीन्स जस्ट लैटरली नियर बाय ईच अदर। ओके बट in the meiosis phase, when they arranged at the metaphasic plate, they arranged in a homologous manner, means chromosome number 1 from father will just pair with chromosome number 1 with mother, and chromosome number 2 of father will pair with chromosome 2 of mother. In this way all the chromosomes will arranged at the plate in a pairing form, जो कि पेयरिंग माइटोसिस में नहीं होती। माइटोसिस में जस्ट एडजेसेंट एक दूसरे के साथ, जैसे लैटरली हम लोग हाथ एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े रहते हैं, तो हाथ पकड़ के नहीं खड़े रहेंगे, लेकिन ऐसे अरेंज्ड हो जाएंगे बगल में खड़े होकर। लेकिन मियोसिस में हर क्रोमोसोम अपने पेयर को ढूंढकर और पैरेलली डुप्लेक्स में अरेंज्ड होता है ऐसे। And this arrangement is pairing of homologous chromosome will start at the lactoteen stage, means during lactoteen stage the same set of chromosome, that is one from father and one from mother, will start searching each other. Okay, now come to the next stage, that is zygotine stage. In the zygotine stage the pairing will be completed, होमोलोगस क्रोमोसोम बिल्कुल पैरेलली अरेंज्ड हो जाएंगे। हम लोग जानते हैं, मैंने माइटोसिस के वीडियो में बताया है, द क्रोमोसोम विच गो फॉर द डिवीजन इट replicates its amount and the replicated amount is called sister chromatids. ओके तो हर क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमेटिड्स के फॉर्म में रहेगा क्योंकि अमाउंट का रेप्लिकेशन हो चुका है। So the homologous chromosome will have, both the homologous chromosome will have its sister chromatid. ये क्रोमोसोम नंबर 1 ही है लेकिन ये मदर का है, ये क्रोमोसोम नंबर 1 ही है लेकिन ये फादर का है। इसका अपना सिस्टर क्रोमेटिड्स है एंड इसका अपना सिस्टर क्रोमेटिड्स है। So these are called sister chromatids. A complex material, a chemical substance is formed in between these two homologous chromosomes, that is called as synaptonymal complex. Synaptonymal complex that helps to maintain the stability of this homologous chromosome. आखिर homologous chromosome जो हैं अगर ऐसे पेयर हो रहे हैं, जैसे ये एक homologous chromosome हुआ फादर से था और यही क्रोमोसोम नंबर 1 जो है वो मदर से होगा, तो आखिर इसमें कुछ ग्लू लगा देंगे, कुछ सब्सटेंस रखेंगे तब ये, क्योंकि इसके बाद में भी इसके साथ कुछ कुछ घटनाएं होने वाली हैं, तो ये स्टेबल रहेगा अपने पोजीशन पे। दैट इन बिटवीन दिस वी एस्टेब्लिश, लाइक दो ईंट को रखते हैं तो बीच में सीमेंट डालते हैं, वही टेम्पररी सीमेंट है, दैट इज कॉल्ड एज सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स. दिस टेक्स प्लेस इन जाइगोटीन स्टेज. So first synaptonymal complex is formed, pairing of homologous is completed, and pairing of homologous chromosome is the process is known as synapsis. इस process को हम लोग synapsis कहते हैं, in which there is pairing of homologous chromosome. So during zygotine what takes place? Synapsis takes place, synaptonymal complex is formed, complete homology chromosome pair with each other, sister chromatids are determined, एकदम दिखते हैं sister chromatids, and the structure which shows during the zygotine stage is known as bivalent in relative to the chromosome. अगर हम लोग क्रोमोसोम को देखें तो कितने क्रोमोसोम हैं? 2 हैं,
सो दिस इज कॉल्ड एज बाइवेलेंट। और अगर हम लोग सिस्टर क्रोमेटिड्स को, टोटल सिस्टर क्रोमेटिड्स को काउंट करें तो एक, दो सिस्टर क्रोमेटिड इसमें, दो सिस्टर क्रोमेटिड्स इसमें, सो देयर आर 4 सिस्टर क्रोमेटिड्स, इसके दो, इसके दो, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एट टेट्राड अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट को अगर स्ट्रक्चरल लेवल पे कहा जाए तो इसको बाइवेलेंट कहते हैं क्योंकि 2 क्रोमोसोम अरेंज्ड हुए हैं, या इसको टेट्राड भी कह सकते हैं क्योंकि 4 सिस्टर क्रोमेटिड्स इसमें हैं। सो द फॉर्मेशन ऑफ बाइवेलेंट एंड टेट्राड इज ऑल्सो टेकिंग प्लेस इन द zygote stage. So in the zygote stage, synapsis takes place, synaptonymal complex formation takes place, the structure of the structure of chromosome is now bivalent or tetrad. These 4 points you have to mention in zygote. Okay. In leptotin, homology of chromosome starts pairing, chromosome starts taking its shape and search for its homologous chromosome. These 2 stages are small stages. Now come to the real process that takes place in the next stage of meiosis 1, prophase 1, that is पैकेटिन स्टेज। और ये स्टेज आपका रेस्पॉन्सिबल है कि देखिए कैसे जेनेटिक वेरिएशन आता है। मैंने कहा था कि ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं इस क्रोमोसोम के, और ये रेड वाले सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं इस क्रोमोसोम के, मतलब ये दोनों क्रोमोसोम नंबर 1 ही है, लेकिन 1 इज फ्रॉम फादर एंड 1 इज फ्रॉम मदर। सो दिस सिस्टर क्रोमेटिड्स, नाउ सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ क्रोमोसोम फादर एंड सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ क्रोमोसोम मदर आर कॉल्ड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये दोनों तो एक ही क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स नहीं है, तो क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ओके, क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ये सभी पॉइंट शॉर्ट में आते हैं आपके एग्जाम में। क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम आर कॉल्ड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, क्योंकि मैंने बताया है जेनेटिक वेरिएशन होता है और इसका एक्सचेंज इससे होगा, इसका एक्सचेंज इससे होगा। सी दिस इज द प्रोसेस वेयर इट इज गोइंग टू हैपन। यही प्रोसेस है जहां ये बात होने जा रही है, ये इंसिडेंट होने जा रहा है। इसका क्रोमेटिड और इसका क्रोमेटिड दैट इज कॉल्ड एज नॉन सिस्टर क्रोमेटिड विल क्रॉस ओवर ईच अदर, एक दूसरे पर क्रॉस हो जाएंगे। जैसे ये आपका मदर से था और ये आपका फादर से था, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स थे, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स थे। मैंने सेम कलर इसलिए लिया है क्योंकि ये मदर से है, फादर से है, लेकिन क्रोमोसोम्स एक ही हैं, कैरेक्टर एक ही शो कर रहे हैं, जीन्स तो एक ही हैं। इसीलिए बाद में कहा जाता है जीन ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयरिंग, क्योंकि वन कम फ्रॉम फादर एंड वन कम फ्रॉम मदर। नाउ हियर सिस्टर क्रोमेटिड्स, इसका ये सिस्टर क्रोमेटिड्स है। देखिए पेयरिंग कहाँ होगी, ये सिस्टर क्रोमेटिड इसका मदर का और ये सिस्टर क्रोमेटिड फादर का आपस में ऐसे क्रॉसिंग ओवर करेगा, मीन्स करीब आएगा और एक मटेरियल को एक्सचेंज करने के लिए एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाएंगे। दिस विल ओवरलैप ऑन दिस एंड द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर। तो ये जो सिस्टर क्रोमेटिड है इसका और ये सिस्टर क्रोमेटिड है इसका, लेकिन ये दोनों आपस में कैसे हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, एंड दिस इज जस्ट लाइक क्रॉसिंग ओवर। ये आपका क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट होगा। ये क्रॉसिंग ओवर क्यों होगा ये आगे जाके पता चलेगा। सो क्रॉसिंग ओवर ऑलवेज टेक्स प्लेस बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। These are the lines that you must remember. Crossing over takes place between the non-sister chromatids of homologous chromosome. Okay? So now this is पैकेटिन stage, which is demarked by the formation of crossing over between the non-sister chromatids. Now इस क्रोमेटिड्स के बनने, क्रॉसिंग ओवर होने के बाद देखिए होता क्या है रियल में, इसका यहाँ से टूटेगा और इसका यहाँ से टूटेगा,
मदर का चला जाएगा फादर पे, देखिए जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गया, और फादर का चला जाएगा मदर पे। ये डिफरेंस आ गया इस क्रोमोजोम में, ये टूटकर फादर से आ गया, देखिए थोड़ा सा डिफरेंट था, और ये फादर में यहाँ से टूटकर चला गया मदर में। ओके, क्रॉसिंग ओवर होने के बाद ये घटना अंदर में होती रहती है, जो कि दिखती नहीं है, लेकिन ये टूटना झूटना होता रहता है। ये आ जाएगा यहाँ पे, और ये आ जाएगा आपका फादर वाला मदर पे, ये फादर का था तो मदर पे, और ये मदर का था तो फादर पे। ओके, ये अंदर होते रहेगा, लेकिन ये क्रॉस्ड ओवर दिखते रहेंगे, ऐसे दिखते रहेंगे। सो in the diplotin stage, after crossing over, exchange of genetic material takes place. Now in the diplotin stage, crossing over complete होने के बाद ये आपस में अब अलग होना स्टार्ट हो जाते हैं। टर्मिनलाइजेशन स्टार्ट्स इन दिस वे। ओके, टर्मिनलाइजेशन, और एक पॉइंट पे ये अटैच रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कैजमाटा। This is called as कैजमाटा. This is completely or clearly seen in diplotin stage. ओके, क्रॉसिंग ओवर होना, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होना आपका पैकेटिन स्टेज में होता है। ओके, बट जेनेटिक मटेरियल के एक्सचेंज होने के बाद क्रोमोजोम सेपरेट नहीं हो जाते, कुछ कुछ प्रोसेस होता है, इसमें एंजाइम्स यूज होते हैं कटिंग के लिए, ज्वाइनिंग के लिए, दैट इज रिकम्बिनेज एंजाइम। उसके बाद अब धीरे धीरे एक्सचेंज मटेरियल होने के बाद ये आपस में सेपरेट होने की कोशिश करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि स्टार्टिंग कैसी हुई थी, दोनों सेपरेट थे, तो अब एक्सचेंज हो गया तो दोनों सेपरेट होंगे। सेपरेट होने के लिए टर्मिनलाइजेशन होगा, और बीच में क्रॉसिंग ओवर को ऐसे अगर जो चिपके हुए थे ऐसे हैं, ऐसे क्रॉस्ड ओवर है, तो क्या होगा, इसको ऐसे करना होगा, टर्मिनलाइजेशन, फोर्सली इनको हटाना होगा। हटाने के वक्त में एक जगह में क्रॉसिंग ओवर बिल्कुल क्रॉस सेप्ट दिखता है, दैट इज कॉल्ड डिप्लोटीन स्टेज। जिस स्टेज में टर्मिनलाइजेशन के दौरान बिल्कुल क्रॉस स्ट्रक्चर दिखता है क्लियरली माइक्रोस्कोप में, देन एंड दिस क्रॉस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज कैजमाटा। इस क्रॉस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं कैजमाटा, एंड दिस इज सीन इन डिप्लोटीन स्टेज। सो डिप्लोटीन स्टेज इज डिमार्क्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ कैजमाटा। नाउ द लास्ट स्टेज दैट इज डाइकाइनेसिस, आपका वो क्रॉसिंग ओवर होना, धीरे धीरे ऐसे कैजमाटा का फॉर्मेशन होते हुए, ये तो आप में इसमें अटैच हो जाएगा, ये मदर का फादर और इसमें, और कैजमाटा बनेगा डिप्लोटीन में दिखेगा। उसके बाद कैजमाटा भी हटेगा, कैजमाटा भी जैसे ऐसे क्रॉस ओवर था, ये धीरे धीरे ऐसे होगा, और ये सेपरेट हो जाएंगे इन दिस वे, एंड दिस सेपरेशन इज डिमार्क्ड बाय डाइकाइनेसिस। बिल्कुल देखिए, इसका फादर का मदर में आ गया, फादर का ये ग्रीन पोर्शन मदर में चला गया, और मदर का ये रेड पोर्शन जो था वो फादर में चला गया। सो अब ये क्रोमोजोम बिल्कुल जो हम लोग स्टार्टिंग किए थे इस क्रोमोजोम से, जिसमें दोनों ग्रीन थे, यहाँ पे आप देखिए दोनों ग्रीन थे, अब ये क्रोमोजोम ऐसा नहीं रहा, मदर का थोड़ा कैरेक्टर ले लिया ये क्रोमोजोम, और ये मदर वाला क्रोमोजोम फादर में चला गया, और यही क्रोमोजोम आपके गैमेट में जाएगा, जो कि थोड़ा डिफरेंट कैरेक्टर शो करेगा, मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर शो करेंगे। सो दिस इज प्रोफेज 1 इज रेस्पॉन्सिबल फॉर योर जेनेटिक वेरिएशन दैट इज ब्रॉट in the sexual reproduction. Dikinesis is demarked by the separation of homologous chromosome, exchange of genetic material बिल्कुल हो गया। अब ये प्रोफेज 1 का लास्ट स्टेज है, तो ऑफ कोर्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें बिल्कुल डिसअपियर हो जाएंगे, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएगा, और होमोलोगस क्रोमोजोम जो थे वो आपस में क्रॉसिंग ओवर करके अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करके फिर अलग हो जाएंगे। ओके, separation of homologous chromosome is demarked in dikinesis. So this is the 5 stages of prophase 1, that is your leptotin, zygotin, pachytin, diplotin, dikinesis. In leptotin there is pairing of homologous chromosome, formation of homologous chromosome, searching of chromosome for its homology pair of. In zygotin stage the homologous chromosome completely paired,
synaptomal complex is formed. The process of pairing of homologous chromosome is called synapsis. The structure of the chromosome in this stage is called bivalent or tetrad. Now the real process of exchanging of genetic material starts in the Packettine stage, and the genetic material exchange takes place by the process of crossing over. और crossing over कहाँ होता है? non sister chromatids में होता है. Now the crossing over, after crossing over, cutting, pasting of the chromosomes. Now the terminalization starts to separate the homologous chromosome. The terminalization starts, it starts the diplotin stage, and at one position there is a crossover sign. That crossover sign is called chiasmata. So chiasmata is demarked by diplotin stage, and after the formation of chiasmata, वो chiasmata भी फोर्सली उसको ब्रेक करके अलग कर दिया जाता है, उसको पुश करते हुए अलग किया जाता है, इन दिस वे, पुशिंग वे. एंड आफ्टर दैट द होमोलोगस क्रोमोसोम आफ्टर एक्सचेंजिंग द जेनेटिक मटेरियल सेपरेट्स इन डाइकाइनेसिस, एंड डाइकाइनेसिस होते हुए प्रोफेज 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस भी आपका disappear हो जाएगा. So this is the complex structure. Now the next structure you can easily understand if you have understood the माइटोसिस. अब अगर आपने माइटोसिस को समझा है तो नेक्स्ट स्टेज आप आराम से समझ लेंगे, क्योंकि मियोसिस का सबसे कॉम्प्लिकेटेड स्टेज यही है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ, दैट इज प्रोफेज 1 एंड प्रोफेज 1 सब स्टेजेस, दैट इज 5 स्टेजेस, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस. एंड इट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. ये आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये बनना आपका ये सारा स्टेज एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. हर स्टेज का कैरेक्टर्स पूछा जाता है, हर स्टेज का आपका शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सिस्टर क्रोमेटिड्स, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, क्रॉसिंग ओवर, कैस्माटा, होमोलोगस क्रोमोजोम, सिनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स, ये सारे शॉर्ट डेफिनेशंस में बहुत इंपॉर्टेंट है. सो वॉच दिस वीडियो, रीड द बुक and make the answer in a point wise with this diagram I am sending you in the Google Classroom in your copy. Okay, thank you.